So let's start up with our topic for today, which is Cisco wireless. Anything you wanted to start with? What is wireless? A very common introduction. It's not an interview, guys. Just to be, an introductory session. Let's have a like break the ice and have an integrated talks with each other. Mhm. So what is wireless? Maybe before going to the Cisco wireless, what is wireless? The communication involved without the wire, without. For sure. So when two devices, maybe computers, maybe mobiles or whatever, Mhm, they are communicating with each other mhm, without the wires, right? It mhm, is named as your wireless medium because typically you are using these things using maybe electromagnetic waves. Okay, what are those? We will be gonna touch that point in a moment. Okay, mhm. so for sure, let me electromagnetic waves. So medium is what? Medium is wave. This wave, electromagnetic waves have a lot of waves included into it, but we will be gonna touch radio waves or microwave. Okay, Mhm. fine. So if I will talk about discovery of wireless, I cannot give credit to a single person because there were a lot of contribution done from several inventors, right? Just starting from your Tesla or Nikola Tesla. So he was the one who did really a significant contribution to the development of your wireless technology, right? Okay. Okay. This was the guy who gave the overview कि wireless energy transfer कैसे रहता है and in which era 19th century में इन भाई साहब ने पूरा बात करना शुरू कर दिया था 19th century और 20th century के मिड में निकोला टेस्ला was one who was working on it in really a very good mode है ना Mhm. फिर there was a person named as Maxwell. Okay, full name is James Clerk Maxwell. Okay. इन्होंने 18th सेंचुरी में काम करना शुरू कर दिया था वे बिफोर देन टेस्ला. Nicholas. Okay, Okay. 1831 to 1879 if I will talk about, he worked on it and he worked on what? थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर इन्होंने बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में इन्होंने बात की, है ना. और इन ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड वर्क इन्होंने वायरलेस सॉल्यूशन का जो दिया है वो मैक्सवेल का एक मेजर कंट्रीब्यूशन जाता है उसमें. Okay. देन देयर वाज अ पर्सन नेम्ड एज हर्ट्ज, है ना. हर्ट्ज एक यूनिट भी है, Yes. राइट. Yes. जर्मन ये आपके साइंटिस्ट हुए. So he also experimented a lot of things on the electromagnetic waves like radio wave. And again in 1880s, okay. और frequency की unit hertz ही है, which is on the honor of this scientist. इनका पूरा नाम if I am not wrong it was Heinrich Hertz. Okay, then there was one more named as Marconi. Have you heard about Marconi? अगेन 18 सेंचुरीज और 19 सेंचुरीज में इन्होंने काम किया. ओके, इटालियन इन्वेंटर थे ये. इनको क्रेडिट जाता है प्रैक्टिकल डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन के लिए फॉर वायरलेस टेक्नोलॉजीज. इन्होंने सिग्नल भेजना शुरू किया फ्रॉम इंग्लैंड टू न्यू फाउंडलैंड. ओके, so he was the one who sent the signal successfully. So we can say wireless technology, we are aware कि it is the transmission of data या information या signals, right, Mhm. between two devices or between two media, two physical, instead of physical connection it uses the electromagnetic waves, है ना, like radio waves or different waves.
यहाँ पर एक टर्म और हम यूज करते हैं, नेम्ड एज वाईफाई, राइट। वी यूज द टर्म नेम्ड एज वाईफाई, राइट। वाईफाई एब्रीवेशन है वायरलेस फिडेलिटी की, और दिस इज समथिंग अ टेक्नोलॉजी। इस वाईफाई को हम एक एज एन, जैसे वायरलेस और वाईफाई एक इंटर, आई विल से कि आप इंटरचेंजेबल आपकी टर्म है, राइट। तो बेसिकली यही है कि अलाउ द डिवाइसेस टू कनेक्ट ऑन द इंटरनेट और कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग द वायरलेस सॉल्यूशन विद इन अ लिमिटेड रेंज फॉर श्योर, है ना। कॉमनली कहाँ पर यूज होता है? आपका होम्स में, ऑफिस में, पब्लिक प्लेसेस पे, एरोप्लेन्स में आप जा रहे हो तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, थ्रू द रेलवे ट्रैक्स इफ यू आर गोइंग, आपको वहां पर मिल जाएगा, राइट। तो वाईफाई इज यूजिंग एवरीवेयर, ठीक है। और वाईफाई इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, आई विल से, ऑल द टाइम, राइट। सो everything nowadays, if you are talking about mobile, tab, laptops, LAN ports are gone यार, LAN ports आपको नहीं दिखाई देंगे, but they have the Wi-Fi chipset, everything, even your AC, washing machines, है ना, स्मार्ट मशीन, स्मार्ट किचन की बात हम करते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस की हम बात करते हैं, तो हाउ इट इज पॉसिबल? IoT is coming on the way, a way warmed up into the market. How? Using the wireless. So अगर हम ज्यादा बात नहीं करते, 2011 की बात करते हैं, ओके। 2011 में क्या था? वायर्ड और वायरलेस, राइट। ये लगभग लगभग बराबर थे, ओके। बट अगर अभी हम बराबर बराबर इन द सेंस सर मार्केट शेयरिंग, ये दोनों मार्केट का। शेयरिंग, राइट राइट, मार्केट शेयरिंग, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विपमेंट्स। ओके ओके ओके। तो अभी लेकिन हम इक्विपमेंट्स की बात करें 2024 में, वायर्ड तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, वायरलेस इज बूमिंग, है ना। तो 2005 की अगर मैं बात करूं तो हमारे नेटवर्क्स में हम देखते थे कि यार 150 एपीज आ रहे हैं, और वी वर थिंकिंग कि यार 150 एपीज आर रियली वेरी गुड नेटवर्क। बट अभी तो 3000 5000 एपी आपके कैसे मतलब अकोमोडेट हो जाते हैं, है ना, पता ही नहीं चलता है। क्यों? हर जगह तो वायरलेस हमारा डिप्लॉय हो रहा है, कैंपस डिप्लॉयमेंट में, स्टेडियम कोई खुल रहा है तो वहां पर वायरलेस है, कॉन्फ्रेंस के लिए चाहिए वहां पर है, मेट्रो के लिए वहां पर चाहिए, हॉस्पिटल से वहां पर चाहिए। वायरलेस इज रियली बूमिंग। वी कैन नॉट से कि वायरलेस चला जाए, है ना। दैट अगेन दैट इज अ सेपरेट डिबेट कि किसका वायरलेस अच्छा है, अरूबा, सिस्को, ये वो, देर आर लॉट ऑफ थिंग। बट हाँ, वायरलेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फॉर श्योर। देर आर सम challenges. What are the challenges? Any idea? वायरलेस में चैलेंज हमारे challenges, The सिग्नल, लॉस challenge ऑफ would be सिग्नल, या गो अहेड। signal interference, तो right? interference, yes, interference, interference is a major problem. Why? Because थोड़ी देर में हम बात करेंगे, वैसे तो आप लोगों को पता ही है 22.4 गीगाहर्ट्ज पे हमारी मेजरली कम्युनिकेशन होती है, और उसी पर बहुत सारी डिवाइसेस, जैसे आपके पोर्टलेस फोन आपके यूज करते हैं, या माइक्रोवेव्स आपके यूज हो रहे हैं, या और सारी डिवाइसेस जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करती है, तो इट इट अफेक्ट आवर सिग्नल्स, तो दैट इज नेम्ड एज इंटरफेरेंस। फिजिकल बैरियर्स भी होते हैं फॉर श्योर, बट आई एम नॉट टचिंग दैट, ओके। देन सिक्योरिटी कैन बी एन इश्यू। वाई? आप शेयर्ड मीडिया यूज कर रहे हो, देर इज एन एपी, AP is sending some signals, and these signals are getting used by share media, right? So anybody can able to receive those signals and interpret those signals if security measures are not done properly, right? So security is a problem. Then range is a problem. Range for sure, आपका फिजिकल मीडिया तो नहीं है कि आप कहीं तक आप इसको एक्सटेंड कर लो, इट्स अ वायरलेस मीडिया। तो वायरलेस मीडिया में या तो आपको फिजिकल मीडिया बनाना पड़ेगा, या आपको इस तरीके से एपीस करना पड़ेगा कि आपका ये जो एपीस के बीच में जो आपकी इंटरफेरेंस है ये बढ़े, राइट। तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, और व्हाई इट इज नीडेड, हाउ मच इट इज नीडेड फॉर द डेटा, फॉर द वॉइस सेपरेटली,
हम उस पर अच्छे से बात करेंगे लेटर ऑन, So it है means ना। signal overlapping, sir, between हाँ, the two ओवरलैपिंग networks. जो है ना हमें चाहिए ना, Okay. Yeah. ओवरलैपिंग हमें चाहिए, है ना। Mhm. कितनी चाहिए, देखो ये भी डिपेंड करता है कितनी चाहिए। वो इसके लिए हो सकता है हमें ज्यादा चाहिए, राइट। वॉइस Mhm. ट्रैफिक जो है Mhm. वो यूडीपी ट्रैफिक Mhm. है ना। डेटा ट्रैफिक आपका सारा का सारा मैक्सिमम जो होता है 99% आई विल से टीसीपी ट्रैफिक हो, तो उसके अंदर आपकी ओवरलैपिंग अगर थोड़ी कम भी होगी तो चलेगा। Okay. देन बैंडविड्थ इज एन इशू, राइट। तो बैंडविड्थ आपकी हो सकता है कि जितनी आपका वायरलेस वायर्ड दे रहा हो उतना वायरलेस ना दे, है ना। वायरलेस का क्या स्टैंडर्ड होता है और वायर्ड का क्या स्टैंडर्ड होता है, एक छोटा सा उस पर भी हम हल्की सी डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज वायर स्टैंडर्ड 802.3, Three. हार्ड अबाउट इट, है ना। Yeah. You वायरलेस का can. स्टैंडर्ड क्या होता है 80.2.11, 11. करेक्ट, 11। Hmm. फिर 11 में भी आपका सब स्टैंडर्ड आ जाएगा बी, है ना, BGN, Yeah. AN, राइट, Mhm. BGN, राइट। तो ये सारा AX भी आ गया अब तो, है ना। तो Mhm. लेट्स टॉक अबाउट 802 एंड 80.2.3 एंड 80.2.11। Mhm. अगर हम बात करें हब्स के टाइम की, बिकॉज मैं हाफ डुप्लेक्स की बात करूंगा, रीजन आपका वायरलेस जो है वो सारा हाफ डुप्लेक्स है, राइट। इट्स नॉट अ फुल डुप्लेक्स, इट्स अ हाफ डुप्लेक्स थिंग। तो मेरे मान लो यहाँ पर कुछ पीसीस हैं, है ना, देर आर टू पीसीस, दे वांटेड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, और ये दोनों जो कनेक्टेड है दैट इज कनेक्टेड विद द हब, Mhm. ओके। तो हब से जब ये ट्रैफिक, ओके, एक और बना लेते हैं ताकि वी कैन हैव सम काइंड ऑफ कोलिजन आल्सो, right? So we have three PCs and all of them are connected with the hub. Mhm. Uh, Give me a minute. Fine. Now इन्होंने कम्युनिकेशन स्टार्ट की, और ये स्टार्ट कम्युनिकेशन इनको भेजना था बी पर Mhm. बीच में इन्होंने भी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी। अब दोनों ने अब कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी तो बीच में क्या हो जाएगा, इट विल बी योर कोलिजन, है ना। कोलिजन मतलब टकरा गया, है ना, कि एक डाटा पहले ही था ऑलरेडी और दूसरा भी डाटा किसी और ने भेजा, तो देयर इज अ कोलिजन। तो इसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल या एक क्या बोले उसको टर्म निकाला, दैट इज नेम्ड एज एनीबडी, CS, collision detection multi system, CSMA. TSMA Yeah, CD, CD, yes. करेक्ट। इट मींस कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, विच मींस मैं कुछ कैरियर सेंस करने के लिए कुछ सिग्नल्स भेजूंगा। कौन भेजेगा, कोई भी पीसी जिसको सिग्नल सेंड करना है दूसरी तरफ, they will send some signals, okay, for carrier sense. Multiple access means because it's a shared media means everybody can use it, okay। तो मुझे चेक करना है कि एक्सेस जो है वो मल्टीपल तो नहीं है, मतलब एक से ज्यादा डिवाइसेस तो नहीं कर दी जाएंगी कभी एक ही टाइम में। तो मैंने ये प्रोटोकॉल निकाला नेम्ड एज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड कोलिजन डिटेक्शन, हेयर वी कैन हैव अ डिटेक्शन। ये किसके लिए यूज हुआ आपका, पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, हब्स वगैरह के लिए। और आई विल गोना टॉक अबाउट जहाँ फिजिकल मीडिया है आप, है ना। तो इन्होंने इस तरीके से अब कैरियर सेंस के लिए जब भेजा ए ने, तो देखा कि कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इट कैन सेंड द ट्रैफिक क्लियरली, है ना। बट यहाँ पर भी अब आपकी कंडीशन ये हो सकती है, अगेन द सेम थिंग। इन्होंने करियर सेंस के लिए भेजा, यहाँ से इन्होंने करियर सेंस के लिए भेजा, यहाँ से इन्होंने करियर सेंस के लिए भेजा। मेरा मीडियम जो है दैट इज फ्री करंटली, ओके। तो फ्री है, इट मींस अब ये भी डाटा सेंड कर सकते हैं, ये भी डाटा सेंड कर सकते हैं, एंड प्रॉब्लम इज देयर एंड देन एंड देयर कि अभी तो फ्री था लेकिन एक ही दम मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ तो मेरी कोलिजन हो जाएगी। फॉर द सेम दे हैव एडेड समथिंग नेम्ड एज जैम सिग्नल। हैव यू हर्ड अबाउट इट, जैम सिग्नल? जैम सिग्नल क्या होता है एनीबडी?
जैम सिग्नल क्या कहेगा कि ठीक है, इफ इट इज फ्री, आई एम सेंडिंग द डेटा, एंड बिफोर डेटा आई एम सेंडिंग द जैम सिग्नल. Jam signal will say, now nobody will send the data because I am about to send this data. अगेन एक आपका तरीका है, इन्वॉल्वमेंट है, ताकि कोलिजन मेरी ना हो. जैम सिग्नल डिसरप्ट जो करेगा वो बहुत थोड़े टाइम के लिए करेगा, बट आपका फायदा ही हो जाएगा कि आपकी अगेन कोलिजन नहीं होगी. इसके साथ इन्होंने एक और मैकेनिज्म निकाला, दैट इज बैक ऑफ एल्गोरिथम. बैक ऑफ एल्गोरिथम ये कहलाता है कि इन एनी केस अगर मेरी कोलिजन हो गई, है ना, इफ माई कोलिजन हैपेंस, इन दैट केस ये सारे के सारे चुप बैठ जाएंगे. दे विल नॉट सेंड एनी ट्रैफिक. दैट इज से इसने 30 सेकंड के लिए चुप हो गया, ये 20 सेकंड के लिए चुप हो गया, ये 10 सेकंड के लिए चुप हो गया. चुप मीन्स दे आर नॉट सेंडिंग द ट्रैफिक. ओके. जैसे ही इसका बैक ऑफ क्लियर होगा, इट विल सी अगेन, इट विल सेंड द कैरियर सिग्नल, ये चेक करने के लिए कि मेरा मीडियम फ्री है या नहीं. इफ इट इज फ्री, इट विल सेंड द डेटा, ओके, इंक्लूडिंग योर जैम सिग्नल, और उसके बाद वो डेटा सेंड करेगा. और ये बैक ऑफ टाइमर इनका बढ़ता रहेगा, ओके, टिल दिस पीरियड इज क्लोज्ड. तो देर इज सम प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ योर शेयर्ड मीडिया फॉर श्योर, राइट. कोई मुझे बताएगा कि हम कौन सा यूज करते हैं इन केस ऑफ वायरलेस? जैसे वहां पर CSM में CD यूज करते थे, है ना, यहाँ पर हम कौन सा यूज करते हैं? एनीबडी प्लीज बी इंटरेक्टिव. Am I audible? Yes, you are, sir. Okay. No So idea. it is CSMA CA. ओके. यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है वो CA है. कोलिजन अवॉइड कर सकते हैं हम, यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास फिजिकल मीडिया तो है ही नहीं, है ना. तो वी कैन जस्ट अवॉइड इट. तो ये प्रोएक्टिवली यहाँ पर काम करेगा. यहाँ पर हम डिटेक्ट नहीं कर पाए. तो मान लो मेरा ये वर्क स्टेशन है, यहाँ पर एक वर्क स्टेशन ये है, दोनों ने डाटा भेजना है, बीच में मेरा सिस्को AP है, ओके. ओवर द वायरलेस मीडियम अगर डेटा सेंड करना है, तो देर इज अ प्रोटोकॉल नेम्ड एज CSMA CA, जो काम करेगा टू चेक आइदर माई मीडिया इज फ्री और नो, है ना. और इसके साथ कुछ और फ्रेम्स भी ऐड कर देता है वो, named as RTS CTS. I hope you people have heard about it. If not, that's fine. Okay, we will gonna talk about. तो यहाँ पर सबसे पहला, कोई भी पार्टिसिपेंट है आपका, A B, कोई भी, एनी पार्टिसिपेंट, ओके, if they need to send the data, they need to follow some steps, they need to adhere those steps for sure, right. तो ये क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे मीडियम को. तो WLAN के पास जब भी आप काम करोगे, इट इज CSMA CA विच विल कम इनटू द पिक्चर, ओके. अब हम बात कर लेते हैं RTS और CTS की. RTS और CTS क्या रहता है ना. RTS क्या कहेगा? ये दो फ्रेम्स है, पहली बात, है ना, एक तरीके के, आप मान लो पैकेट्स मान लो, है ना, जिसे हम लेयर 2 में फ्रेम बोल देते हैं. RTS होता है रिक्वेस्ट टू सेंड. CTS क्या होता है? क्लियर टू सेंड. दो फ्रेम्स है, ओके. ऑप्शनली आप यूज कर सकते हो इन केस ऑफ योर CSMA CA के बीच में. प्रोसीजर क्या होगा? जब भी आपका एक्चुअल डाटा ट्रांसमिशन होगा, मीडियम मेरा फ्री है या नहीं, ये भेजने के लिए, ये चेक करने के लिए एक फ्रेम भेजा जाता है RTS. RTS कहता है कि आई एम अबाउट टू सेंड अ डेटा, बट आई वांटेड टू चेक and I wanted to make it clear if I can start a transmission or I need to wait for some time. अगर ये मीडिया मेरा फ्री है, which AP will tell in our case, ये बोलेगा कि ठीक है, मीडिया इज फ्री, यू आर गुड टू गो,
and it will send a CTS. CTS means clear to send, है ना? तो रिक्वेस्ट टू सेंड एक आपका एक तरीके का फ्रेम है जो देखेगा कि मे आई सेंड दैट डेटा. CTS एक तरीके का आप मानोगे एक्नॉलेजमेंट है विच विल से दैट ओके आइदर आई कैन सेंड द डेटा. और अगर CTS नहीं मिलता है उस केस में अगेन आपका रैंडम बैक ऑफ टाइमर इनिशिएट हो जाएगा इन केस ऑफ योर वायरलेस सॉल्यूशन आल्सो एंड इट विल वेट फॉर सम टाइम. सो अगर मैं इसका आपका पैकेट फ्लो सॉरी इसका एक ट्रैफिक फ्लो काइंड ऑफ अगर मैं बनाऊं तो डिवाइस आपका बिगिन बिगिन टू स्टार्ट द डेटा. वो बिगिन करने वाली है स्टार्ट डेटा करने के लिए. उसने भेजे फ्रेम्स, है ना? RTS फ्रेम सेंड. फ्रेम सेंड करने के बाद उसे पता चलता है कि मीडियम मेरा आइडल है या नहीं. इन केस अगर ये नहीं है, इफ इट इज नो, नो, तो आपका बैक ऑफ टाइमर जो मैंने आपको बताया था, बैक ऑफ टाइमर आपका इनिशिएट हो जाएगा एंड इट विल वेट, है ना? अगर ये है राइट, तो RTS का मेरे को रिस्पॉन्स मिल गया है थ्रू द CTS, देन डेटा कैन बी can be sent. Any doubt? Any question in this? No? Sir, this is the packet flow we have observed, like when one, let's say there are two wireless client, right? They want to talk to each other. So if they are in the same subnet, our communication goes via AP or they can go directly. Everything will go through the AP. Even if the same communication within the same Correct, subnet, same broadcast correct, domain, right? correct. Okay, So, so there is perfect. an AP, there is an wireless client, there is an wireless client. Now, here again comes a lot of things. Let me tell you, couple of them. They are interacting, okay, with each other. IP 10.10.10.10/24, IP 10.10.10/24. Okay. After the IP, there should be some switch. After the switch, there should be a core switch. After the core switch, there should be a WLC. I am just giving an एक generally आपको typical example मैं आपको दे दूँ. Okay. This client A wanted to interact with client B. This data will come to the AP. AP will send this data to switch from the not to the switch actually. I will say there is a tunnel. I will be gonna talk about this tunnel later on. So there is a tunnel. This data eventually through the switch, okay? क्योंकि अंडरलाइन आपका स्विच ही आएंगे लेकिन ओवरले आपका टनल बन जाएगा. इट विल गो टू द वायरलेस. वायरलेस कन्वर्ट करेगा 802.11 से 802.3 पे. ओके, इफ नीडेड, इफ नीडेड. If not, AP through the AP traffic can go over here, but AP is required for sure. And this data will go to the wireless. Again, depending upon configuration to configuration, बहुत सारी configuration ऐसी आएंगी जहां पर वायरलेस पे हमें डाटा नहीं भेजना कंट्रोलर पे. ओके, तो वो कंट्रोलर से विदाउट कंट्रोलर AP पर भी हम राउटिंग कर सकते हैं. और समटाइम्स AP पर हमें राउटिंग नहीं करनी है, एवरीथिंग विल गो टू थ्रू द WLC, है ना? यहाँ पर आपके दो मोड आ जाते हैं. एक कहलाता है लैप, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट. एक आपका हो जाता है ऑटोनोमस. ऑटोनोमस मीन्स आपका AP ही कंट्रोलर की तरह काम करेगा. आपका AP ही सब डिसीजन लेगा. आइदर इट इज रिलेटेड टू द चैनल असाइनमेंट्स, आइदर इट इज रिलेटेड टू द पावर ट्रांसमिशन, और कोई XYZ आपका कोई भी डिसीजन लेना होगा तो वो AP ले लेगा इन केस ऑफ ऑटोनोमस. इन केस ऑफ लैप, लैप मीन्स लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, आपके मेजरली डिसीजन जो लेगा वो लेगा कंट्रोलर.
बिकॉज आप कंट्रोलर के थ्रू काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर भी आपकी एक तो सिंपली आपने लैब बना दिया, और एक लैब के अंदर आप कनेक्ट कर देते हो फ्लेक्स कनेक्ट। ये एक मोड होता है ना। देर आर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स एक्चुअली, उस पर भी हम आएंगे अपनी क्लासेस में। बट एक फ्लेक्स कनेक्ट करके मोड है। ये मोड कब हम यूटिलाइज कर लेते हैं? आसिफ, यू आज दिस क्वेश्चन राइट। अब मान लो मेरी यहाँ पर एक छोटी सी साइट है, एक छोटी सी साइट यहाँ पर है, एक छोटी सी साइट यहाँ पर है, यहाँ पर है, कुछ ब्रांच साइट्स मेरी यहाँ पड़ी हुई। मेजरली मेरा डेटा सेंटर यहाँ पर है, और डेटा सेंटर में ही मैंने WLC रखा हुआ है। ये मेरा मेन राउटर है, यहाँ पर छोटे छोटे और राउटर लगे हुए हैं, नॉट सो मच हाई। ये राउटर लगे हुए हैं मेरा, और इवेंचुअली मेरा ट्रैफिक सारा जा रहा है ऑन टू दिस राउटर। ओके, मेरा वायरलेस डाटा भी एपी से, हर डाटा मेरी टनल बनाएगा वायरलेस कंट्रोलर पे। तो यहाँ पर भी मेरी एपी से टनल बन जाएगी ओवर दिस कंट्रोलर, यहाँ पर भी मेरी एपी से टनल बन जाएगी ओवर द कंट्रोलर, यहाँ पर भी मेरी टनल बन जाएगी ऑन द कंट्रोलर, और यहाँ पर भी मेरी टनल बन जाएगी ऑन द कंट्रोलर। ओके, अब आप समझो कि यहाँ पर इस लोकेशन में दो मेरे स्टेशन हैं। एक तो मेरा क्लाइंट है, इस क्लाइंट ने जाना है प्रिंटर पे मान लो। ओके, लोकली प्रिंटर पे जाना। अब ये सारा डाटा एक यहां से यहां जाने के लिए भी अगर मेरे को जाना पड़े ओवर द वैन, और थ्रू द वैन मुझे वापस आकर ये बोलना पड़े कि ठीक है यू गो टू द प्रिंटर, एवरी सिंगल डिसीजन इज टेकन बाय द कंट्रोलर, दैट इज नॉट अ गुड डिजाइन। ओके, तो डिजाइन हमें देखना पड़ेगा किस तरीके का डिजाइन रहता है, कैसे, जो कि हम देखेंगे इन आवर फर्दर क्लासेस। वी विल बी गोना टॉक अबाउट ऑल द डिजाइन पर्सपेक्टिव आल्सो। तो यहाँ पर इन केस ऑफ योर स्टैंडर्ड लैब इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस आई विल से, तो हम कन्वर्ट कर देंगे उसको फ्लेक्स कनेक्ट मोड में, जहां पर लोकली हम ये बता सकते हैं कि राउटिंग डिसीजंस हमारा आईपी ले सकता है, सिक्योरिटी डिसीजन भी अगर लेने हैं तो वो भी ले सकता है, बट लॉट ऑफ थिंग्स लाइक रिसोर्स RRM। ओके, तो अगर इस तरीके की आपको रिसोर्स मैनेजमेंट्स करनी है तो वो कंट्रोलर कर देगा, लाइक चैनल असाइनमेंट और बाकी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको धीरे धीरे क्लासेस में बताऊंगा। ओके, सो इट डिपेंड्स हाउ द राउटिंग हैपेंस इन योर एनवायरनमेंट, डिपेंडिंग अपॉन हाउ योर एपी इज वर्किंग। गेटिंग माई पॉइंट? एनी इशू? Very well explained, sir. Thank you very much. Yep. ओके, fine. So I was talking about CSMA CA, right? So CSMA CA is a protocol, I will say, है ना। और ये प्रोटोकॉल यूज क्यों होता है? एडवांटेजेस क्या हुई? हेल्प करता है आपका टू प्रिवेंट लॉस ऑफ डेटा ड्यू टू कोलिजन, ताकि आपकी कोलिजन ना हो। फॉर द सेम यू आर यूजिंग CSM। अगेन यहां पर आपका RTS एंड CTS आपका यूज हो जाता है अलग से, जो मैंने अभी आपको बताया। पर थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि आप कुछ और फ्रेम्स भी सेंड कर रहे हो, लाइक RTS CTS, है ना। थोड़ा सा हल्का सा आपका एडिशनल ट्रैफिक आपने डाल दिया। दूसरा, आपने बैक ऑफ टाइमर डाल दिया, तो बैक ऑफ टाइमर में आपका क्या हुआ? थोड़ा सा आपका डिले आ गया, राइट। थोड़ी सी आपकी लेटेंसी इज इंक्रीजिंग, but that's fine, है ना। We can manage with the latency, but for half duplex it should be very clear. Now let's talk about our electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमने इनिशियली 7th 8th क्लास में मेरे ख्याल से हमने देखा था इन आवर साइंस बुक्स, राइट। इस तरीके से एक लाइन बना देते थे, यहाँ पर होता था जैसे लाइक गामा रेज, राइट। फिर आपका आ जाता था एक्स रेज, राइट। फिर अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, राइट। और यहाँ पर कहीं पर आपका मेरे ख्याल से विजिबल लाइट वाला जो हम, जिसमें हम कलर्स वगैरह देखते हैं और जो सारा कुछ हमें कलर्स दिखाई देते हैं, दैट इज ओनली सिंपली दिस स्पेक्ट्रम, है ना।
विजिबल लाइट। उसके बाद हमारा आ जाता है इंफ्रारेड, जिस पे आप प्रेस व्रेस भी चलाते हैं ना, और माइक्रोवेव, जिस पे माइक्रोवेव हमारा काम करता है, राइट? माइक्रोवेव, है ना? तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। एंड देन कम्स रेडियो वेव्स। फॉर श्योर एफएम तो आप लोग सुनते ही होंगे, तो एफएम वगैरह जो सुनते हो आप यहीं पर सुनते हो। इस तरफ जब हम चल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने इन प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बताया। ओके, मैं उनके बारे में भी बताता हूँ थोड़ी देर में, पर अभी फिलहाल लिख देता हूँ। इस तरफ शॉर्टर वेवलेंथ होती है, ओके। और इस तरफ जैसे हम बढ़ते रहते हैं तो वेवलेंथ हमारी हायर हो जाती है, या बोल देते हैं हम लॉन्गर हो जाती है, ओके। वन पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो मैंने आपको बताया यहां से यहां तक का लाइट से इस तरफ लेफ्ट तरफ जो है ना, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये लेफ्ट और राइट में ना आप गूगल पे देखोगे तो आपको पिक्चर इधर उधर देखने को मिल सकती है, बट द थीम ऑफ द स्टोरी इज सेम। तो यहां से यहां तक जो मैं देखता हूँ ये सारी की सारी कहलाती है आयोनाइजिंग, मतलब हजार्डियस है हमारे लिए, है ना? इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज इन ह्यूमन बॉडी, लाइक एक्सरे। लेकिन हम यूज भी करते हैं एक्सरे, अगर हमें कुछ चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो जैसे चेस्ट का हम एक्सरे वगैरह जाते हैं दिखाने के लिए, राइट? गामा रेज को भी यूज करते हैं कैंसर सेल्स वगैरह डैमेज करने के लिए, ओके। तो दे आर गेटिंग यूज्ड, बट नॉट सो मच पॉपुलर, राइट? अंडर द, मैं बात करूंगा कि बहुत ही एक स्पेसिफिक एरिया में उसको यूज किया जाता है। बट यहां से जो हम देख रहे हैं ये वाली रेज जो है, ये रेज हमारी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाती है, मतलब प्रेफर हो जाती है क्योंकि हार्मलेस है। दिस इज हार्मलेस टू आवर बॉडी। तो यहीं पर कहीं पर जैसे ये माइक्रोवेव और रेडियो है, यहीं पर आप मानो कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो यहीं पे यूज होती है, लाइक 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज। एनी इशू, एनी क्वेश्चन? सर ये शॉर्टर वेवलेंथ और हायर वेवलेंथ मीन्स कि कितना एरिया कवर करेगा ये फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन? हाँ, तो वो जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर हम वो देखेंगे ना स्पेक्ट्रम ओवर द गूगल इमेजेस, तो आपको सारी दिखाई देंगी, है ना? बट आई विल ट्राई टू टेल यू हाउ यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेम। तो मैंने आपको क्या बताया कि इन आवर केस, इन वायरलेस केस, हम क्या बात करेंगे 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, राइट? सो दीज आर द टू फ्रीक्वेंसी बैंड आई विल से जो हम यूटिलाइज करते हैं, राइट? सो पहले हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर, पहले मैं थोड़ा सा ना वेव के बारे में आपको बताता हूँ एक्चुअली ना, फिर इसके पढ़ने का मजा आएगा हमें, है ना? तो अगर मैं एक वेव के बारे में बात करूं तो वेव की डायग्राम हम देखते आए हैं बचपन से ना, इस तरीके से एक लाइन हो जाती है और दिस इज कॉल्ड अ वेव, है ना? ऐसे एक आपकी वेव रहती है। तो वेव क्या है? एक काइंड ऑफ वाइब्रेशन हम बोल सकते हैं, जो विदाउट मीडियम आपका जाता है, और इट कैन कैरी सिग्नल ऑल्सो। अब इस वेव के अंदर आपकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आती है, दोज आर वेवलेंथ, ओके, एम्पलीट्यूड, देन वेव साइकिल, एंड वेव साइकिल से ही हमारा बनता है फ्रीक्वेंसी। तो दीज आर योर, आई विल से सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स, है ना? एनीबडी, व्हाट इज वेवलेंथ? अच्छा, मैं बताता हूँ। देखो, अभी सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये एक तो ये अपर हो गया, राइट? एक ये आपका लोअर एरिया हो गया, राइट? अपर वाले को हम बोल देते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स क्रेस्ट, और ये ट्रफ था, ट्रफ, राइट? सो वेवलेंथ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, इन आवर केस ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स या टू ट्रफ, कैसे भी आप बोल लो, है ना? इट इज नेम्ड एज वेवलेंथ।
लैम्डा से हम इसको डिनोट करते हैं, राइट। इसी तरीके से होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या हो रहता है, यहां से लेकर यहां तक आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, मतलब पीक ऑफ योर क्रेस्ट ऑफ टफ इज नेम्ड एज एम्पलीट्यूड, राइट। अब ये दो तो आपको समझ में आ गया। अभी मैं थोड़ी देर में इसके बारे में भी बताऊंगा कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग गोना गिव एनी टेस्ट। तो ये हमें जरूरत क्यों पड़ रही है पढ़ने की, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन अ मोमेंट, है ना। लेकिन उससे पहले हम वेव साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो मेरी एक वेव है, उसने ये साइकिल कंप्लीट कर दिया, तो ये आपका वेव साइकिल हो गया। अब इसी तरीके से एक साइकिल हुआ है, इसी तरीके से आपके दो साइकिल भी हो सकते हैं, राइट। दिस इज नेम्ड एज वेव साइकिल। तो आपका वेव का साइकिल कंप्लीट हुआ है। जो वेव साइकिल विद इन 1 सेकेंड कंप्लीट हो जाता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, विद इन 1 सेकेंड आपने कितना वेव साइकिल कंप्लीट कर दिया। लाइक इस केस में मेरी फ्रीक्वेंसी होगी 1 साइकिल पर सेकेंड। इस केस में मेरी फ्रीक्वेंसी होगी 2 साइकिल पर सेकेंड। और मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गीगा हर्ट्स, राइट। किलो हर्ट्ज में 1 किलो हर्ट्ज मीन्स 1000 साइकिल पर सेकेंड। 1 मेगा हर्ट्ज मीन्स 10 लाख, राइट, और 10,000, राइट। सिमिलरली 1 GHz you keep on multiply by 10, 5 GHz when I am saying. So you are saying 1K into 10 into 10 into 5. So much of the cycles you are gonna complete in 1 second. That is named as your frequency. Is this point clear to everybody? Yes, yes. Yeah. Now let's come back. अब थोड़ा सा मैं आपको जो वो बात वहां पर बता रहा था ना, यहाँ पर उसके बारे में देखो। इलेक्ट्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने आपको बताया था इस तरफ शॉर्टर वेवलेंथ है, इस तरफ हायर वेवलेंथ। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की ना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विच मीन्स वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। ओके। तो वेवलेंथ आपका यहाँ पर क्या रह रहा है, शॉर्ट हो रहा है। तो इफ इट इज अ शॉर्टर वेवलेंथ इट मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी। और यहां पर मेरी फ्रीक्वेंसी, यहां पर मेरी हायर वेवलेंथ है, क्योंकि वेवलेंथ मेरी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, शॉर्टर फ्रीक्वेंसी। आई होप इट इज क्लियर, यस और नो। Yeah. Yes, yes. ओके। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है या वेवलेंथ होती क्या है। देखिए वेवलेंथ को आप इस तरीके से समझो कि कवरेज, है ना। मैं अगर लेमन टर्म में बात करूं आपकी, वेवलेंथ को आप इस तरीके से समझो कवरेज, राइट। फ्रीक्वेंसी को आप इस तरीके से समझो कि आपका Speed. डाटा रेट्स बोल दो, डाटा रेट या स्पीड बोल सकते हैं, यस, डाटा रेट या स्पीड बोल, है ना। अब जब मैं बोल रहा हूँ 2.4 GHz, है ना, और बोल रहा हूँ 5 GHz, तो फ्रीक्वेंसी किसमें ज्यादा हुई, 5 GHz. तो 5 GHz की स्पीड फॉर श्योर ज्यादा विद कंपेयर टू 2 GHz की स्पीड से। अगेन 2.4 GHz की स्पीड कम है, बट कवरेज जो होगी वो ज्यादा होगी विद कंपेयर टू यूर 5 GHz जिसकी कवरेज कम है। इज दिस पॉइंट क्लियर। Yes. मतलब ये आपका एक एपी है, ये एपी आपका 2.4 GHz सेंड कर रहा है, तो 2.4 GHz मान लो वो यहां तक उसने सेंड किया, Mm. ओके। अब वो 5 GHz भी सेंड कर रहा है, तो 5 GHz वो शायद यहीं तक सेंड कर पाए। तो 5 GHz से क्लाइंट
अगर कोई यहाँ पर है तो दिस क्लाइंट शुड बी हैविंग 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज बोथ, इसीलिए हम दोनों रेडियो ऑन करते हैं हमेशा ऑन आवर वायरलेस। मेक सेंस? Yes. Means APs are at a time eligible to sending both the signal, one the 2.4 and the 5 gigahertz. हाँ हाँ, एपी विल सेंड बोथ द, ये रेडियो बोलते हैं इसको ना कि Mhm. एपी जो है दोनों रेडियोस को यूज करेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज का भी यूज करेगा, 5 गीगाहर्ट्ज का भी यूज करेगा, अनटिल अनलेस आपने हटा ना दिया हो, मतलब डिसेबल ना कर दिया हो। आप डिसेबल कर सकते हो, लाइक देखो, जैसे दिस इज अवर लैब, ओके, इसको मैं स्टार्ट करके आपको अगर आरआरएम दिखाऊं तो यू कैन डिसेबल। लेट मी सी कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना, अदरवाइज आई नीड टू बूट इट अप और डू द कॉन्फ़िगरेशन। हम लैब के बारे में बात करेंगे, कैसे लैब ये चल रही है, ओके, हाउ वी आर वर्किंग ऑन आवर लैब, दैट इज अ सेपरेट क्लास ऑल टुगेदर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द ओवरव्यू कि कैसे रेडियोस को हम डिसेबल कर सकते हैं। ओके, सो फार एनी डाउट? तो एपी सिग्नल भेजता है ऑलवेज इन ऑल द डायरेक्शन, सर्कुलर वे में जाता है इलेक्ट्रिकल वे में, या यून डायरेक्शन भी जा सकता है इसमें? हाँ, तो यूजली इट वुड बी अ सर्कुलर डायरेक्शन, ये कहीं भी जाएगा, ओमनी डायरेक्शन जिसे हम बोलते Okay. हैं। ओके, अच्छा, इसमें जब मैं 5 गीगाहर्ट्ज और आपकी इसकी बात कर रहा हूँ, तो याद है मैं आपको स्टैंडर्ड के बारे में बोल रहा था कि देयर इज अ स्टैंडर्ड नेम्ड एज 80.11, 11. राइट? Yes. 11 में सबसे पहले आपका क्या आया था? बी आया था, Mhm. राइट, इन 1999। ये जो बी था, ये आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज पर ही ऑपरेट होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 11 एमबीपीएस तक ये उस वक्त देता था, विच इज लाइक ग्रेट इन दोज डेज, है ना? वाइडली अडॉप्टेड हुआ था ये, क्यों? एक तो इसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत सही थी, और ये जो स्पीड थी उस टाइम पर, इट वाज सीम्स लाइक अ गुड स्पीड। उसी टाइम पर हमारा 802.11 ए भी लॉन्च हुआ, मींस इन 1999, ओके, 1999। बट ये आपका क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज पे करता था, ये इंटरऑपरेबल नहीं थे, विच मीन्स कोई डिवाइस जो आपकी ए पे काम करती है वो बी पे काम नहीं कर पाएगी, बी पे जो काम करती है वो ए पे काम नहीं कर पाएगी, एंड दिस इज द रीजन इट गोट अ वेरी हाई चैलेंज। ऑल दो स्पीड इसकी 54 एमबीपीएस तक थी, बट बहुत महंगा पड़ रहा था लोगों को कि हम 11 ए पे जाएं। ओके, उसके बाद आपका जो स्टैंडर्ड आया दैट इज 11 डॉट बी ए जी आया था, जी, है ना? इट वाज इन 2003। ये जो जी आया था, ये बहुत अच्छी स्पीड लेकर आ रहा था, बी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आपका काम कर रहा था, राइट, और बहुत अच्छा इसने अपग्रेड किया हमारा प्रीवियस स्टैंडर्ड को, और इंटरऑपरेबल था ये बी के साथ। बट गेम चेंजर आपका आ गया 11 एन। एन जो आया, ये दोनों के लिए काम करता है ना, इसीलिए आप देखते हो ना, बी जी एन भी दिखाई देता है आपको, और ए एन भी दिखाई देता है, इस तरीके से आपको दिखाई देता है ना? तो एन कैन ऑपरेट ऑन बोथ ऑफ देम। एक I काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इसने यूज की, एम आई एम ओ, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, जिसके अंदर इसने मल्टीपल एंटीनास को यूज करना शुरू किया टू इम्प्रूव द सिग्नल स्ट्रेंथ, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, देर आर लॉट ऑफ, आई विल से, थिंग्स which come into the picture later on in our classes. Okay. सर जो ये बी 11 एमपीएस और ए 54 एमपीएस, तो सर इसका सेंडिंग 11 और रिसीविंग 11, या फिर दोनों मिला के 11 था इसका, कैसे? ये हाफ डुप्लेक्स है ना, अच्छा, हाफ डिफरेंस। कोई भी आपका नेटवर्क मीडिया ओवर द वायरलेस इज हाफ डुप्लेक्स, है ना?
अब अगर आप बात करो तो इसके बाद एसी आया, 802.11 AC, बट नाउ द पीपल आर वर्किंग ऑन 802.11 AX, जिसको हम वाईफाई 6 भी कहते हैं। मतलब 2.4 GHz था, 5 GHz था, राइट, 5 GHz था, अब दे आर वर्किंग ऑन 6 GHz। इससे वाईफाई ओके, 6 इट इज। वाईफाई 6, यस। ओके। So soon it will also come into the picture. They are using some kind of technology named as OFDMA, orthogonal frequency division multiple access, है ना? Again, we will be going to talk about these things later on, not today. But हाँ, things are really changing very fast, very very fast, है ना? तो what I was talking, I forget यार। तो टू के अंदर आपका, हाँ टू और मैं फाइव की शायद फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा था। टू के अंदर आपका नॉन ओवरलैपिंग जो मिल जाते हैं आपको, तीन ही मिलते हैं ना, 1, 6 और 11, राइट। दीज आर द चैनल्स। नाउ 1 AP, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं उसी पे बात करता हूँ। मान लो यहाँ पर एक एपी है, ये 1 पे काम कर रहा है, राइट, चैनल नंबर 1 पे ये काम कर रहा है। दूसरा एपी मेरा यहाँ पर है जो ओवरलैप कर रहा है इसको, एंड दिस इज ओवरलैपिंग ऑन चैनल नंबर 6। तीसरा एपी यहाँ पर है जो काम कर रहा है चैनल नंबर 11 पे, राइट। सो दे आर ओवरलैपिंग, पर वो आपस में जो ओवरलैप होंगे, आपकी ओवरलैपिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए। इसमें कितनी होनी चाहिए, आई विल टॉक अबाउट दैट मैथमेटिक्स लेटर ऑन, है ना। तो ये जो ओवरलैपिंग आपकी है, ये इंटरफेरेंस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि 1 और 6 आपस में अगर हम देखें तो इस तरीके से, मान लो कि ये यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ खत्म हो रहा है, आपस में इंटरवेन नहीं कर रहे। अगर टू होता तो टू इतना इंटरवेन करता आपका, है ना। तो ये वाली आपकी जो बैंडविड्थ थी, इट इज वेस्ट। तो यहाँ पर 1, 6, 11 आपका क्लियर हो जाता है। और ये सारा काम जो आपका होता है रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट का, ये सारा काम करता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर ही डिसाइड करता है किस एपी को मुझे 1 में डालना है, किसको 6 में डालना है, किसको 11 में डालना है ना। तो दैट ऑल द थिंग्स, ऑल द डिटेल्स आपका एपी ही देता है कंट्रोलर को, कि मेरे आसपास कितने और एपी हैं, रोग एपी कितने हैं, मेरे एपी कितने हैं, है ना। एपी अगर ग्रुप्स बना रखे हैं तो मेरे ही ग्रुप में और एपी कितने हैं, मेरे पास क्लाइंट्स कितने हैं, बाकियों के पास क्लाइंट कितने हैं, दूसरा कोई क्लाइंट आ रहा है तो मुझे AP 1 पे डालना है, AP 2 पे डालना है, या AP 3 पे डालना है। ऑल दोज डिसीजंस वुड बी गोना टेक केयर बाय कंट्रोलर। सिक्योरिटी रिलेटेड आपका कोई भी डिसीजन है, वो भी आपका कंट्रोलर लेगा। ओके, तो उसमें हम सिक्योरिटी लेयर 2 की क्या रहती है, लेयर 3 की क्या रहती है, दैट वी विल बी गोना टॉक इन अवर क्लासेस फॉर श्योर। ओके, फॉर टुडे आई होप वी आर गुड. But if you will go to the netminion.net, go to the courses, है ना? In the courses you can see there are a lot of other courses as well, but go for your wireless, click on the wireless, and here you can see wireless, all courses there, right? You can download the syllabus and you can check what we are teaching. फॉर नाउ आई एम जस्ट टेलिंग दैट दीज क्लासेस, ये जो आपकी क्लासेस होंगी ये इंग्लिश में होंगी। ओके, बिकॉज फॉर नाउ वी डोंट हैव एनी पर्सन जो हिंदी नहीं समझता है, तो हम इंग्लिश में ही करेंगे। ओके, 2 आवर्स की आपकी क्लासेस रहेंगी, राइट, जिसके अंदर आपका सैटरडे को 2 घंटे रहेंगे और संडे को 2 घंटे, राइट। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 वीक्स आपका ये जो पूरा बैच चलेगा। इट कैन बी 1 वीक अप और लो, ओके, फॉर श्योर आई एम जस्ट राइटिंग डाउन 6 वीक्स। तो उसके अंदर हम 9800 को भी टच करेंगे, 5500 का भी देखेंगे, और एपीज के थ्रू हम देखेंगे कि ट्रबल शूटिंग कैसे की जा सकती है व्हेन माय एपी इज नॉट कनेक्टेड विद द वायरलेस controller. Okay, and lot of things we will be gonna touch during our classes. Any doubt, any question, please feel free to ask. सर ये लैब सेटअप लोकल कर सकते हैं क्या आपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे? लोकल आप कर सकते हैं, यस, लेकिन आपके पास एक हार्डवेयर एपी होना ही चाहिए, बिकॉज एपी आप सिमुलेट नहीं कर पाएंगे। कंट्रोलर आप कर सकते हैं, है ना।
कंट्रोलर आई कैन टेल यू, आप यूज कर सकते, बट एपी के साथ आपके जो क्लाइंट एसोसिएट होगा, राइट, दैट नीड सम हार्ड। एक एपी मिनिमम एटलीस्ट 1 एपी सॉरी, मतलब एक एपी हमें चाहिए हार्डवेयर टू परफॉर्म द हाँ, लैब। एटलीस्ट एक एपी तो चाहिए। अच्छा सर, हम लैब एनवायरनमेंट आपका यूज कर सकते हैं राइट, फॉर वायरलेस हैंड्स ऑन। हाँ, आई फॉरगेट टू शेयर दैट you will get lab with this training. ओके You will get all the videos of your batch which is getting recorded for sure, and you will get into the portal ताकि आपको दोबारा रिवाइज करना हो तो you can revise it very easily. और लैब सेटअप के लिए आपको वर्कबुक भी मिलेगी कि how you can use the lab. Okay, that we will gonna tell you. ओके ओके। सर ये वीडियो एक्सेस लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा फिर कुछ फॉर टाइमिंग? Lifetime, lifetime. और सर आफ्टर दिस क्लास मतलब कोर्स खत्म होने के बाद भी लैब करना चाहे तो यू हैव एनी ऑप्शन कि आप कांटेक्ट करें या लैब एक्सेस? आप कर सकते हो, बिकॉज यू आर अवेयर लैब रिसोर्सेज जो हैं वो एक्स्ट्रा यूज होंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, राइट? इफ यू आर डूइंग एक्स्ट्रा पेमेंट यू कैन डू द लैब ऑल्सो आफ्टर द बैच। ड्यूरिंग योर बैच ये फ्री रहेगा फॉर श्योर, ओके, बट आफ्टर योर बैच अगर आप करना चाह रहे हो 1 साल बाद, 2 साल बाद, या वेन एवर, you can do, but you need to purchase it for sure. For the people who already done the batches, the fee will be very minimum, okay, but it will. सो ड्यूरिंग द कोर्स कितना कुछ टाइम बाउंडेशन है लैब का, फिर कभी भी मतलब लॉग इन कर सकते हैं ऐसे? हाँ, तो वो जो लैब का आपका 24/7 आपका हो जाता है, ओके, तो इन दैट केस दैट्स नॉट एन इशू। आप ओके। मॉर्निंग में करो, इवनिंग में करो, आप कभी भी कर सकते ओके सर। हो। ओके, आसिफ, Yeah, I'm okay. Thank you very much, sir. It was a very informative lecture. थैंक यू आसिफ।